Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss topic from a virtue ethics. So in your ethics syllabus, philosophy is one important segment, and in philosophy segment, you have different thinkers categorized under four headings or four branches of moral reasoning. That is virtue ethics branch of moral reasoning, consequentialist or teleological branch of moral reasoning, then deontological branch of moral reasoning, and then John Locke's theory of fundamental rights, that branch of moral reasoning. Then there are other branches also, moral intuitionism, moral existentialism, and many more ideas are there. So in this virtue ethics branch, Sadgun Naitikta virtue ethics branch of moral reasoning, okay, in which there are different thinkers like Aristotle, Plato, Socrates, Buddha, Mahavira, many more are there. Okay, and this branch of moral reasoning, that is virtue ethics, okay, we are going to discuss one topic from Aristotle's ideas. So in virtue ethics, Aristotle is very important thinker, and Aristotle gave the concept, or his theory is called as Nicomachean ethics. And in Nicomachean ethics, he gave the idea of eudaimonia, what is good life, okay. Then how to develop that good life. For that he gave two concepts, character virtue and intellectual virtues, that we need to develop. Then character virtue can be developed through habituation. Golden mean can be acquired through habituation, golden mean of character virtues, moral virtues. And then intellectual virtues are developed through contemplation. And this I have explained in my previous recording, so do check out that recording for understanding this concept. Then Aristotle also gave one concept of classification of people on morality. Okay, he classified people on morality. So moral classification of people, that what are different categories of people that exist in the society. And he classified people into four categories, that is vicious people, incontinent people, continent people, and virtuous people. So vicious, incontinent, continent, and virtuous, these are the four categories he classified people on morality. Now what is the difference between this classification, these people that we will discuss quickly. Okay, so first classification of people is vicious people. Now what do you mean by vicious people? See, vicious people, okay, these are the people who do not attempt to be virtuous. They don't want to be ethical. They enjoy doing bad. Okay, उनमें नैतिकता ही आई नहीं, कमीनापन को ही वो सही समझते हैं. They enjoy doing bad. They enjoy doing unethical thing. They get pleasure by bad. They enjoy doing bad, and so they do not attempt to be virtuous. इनमें sense of morality, sense of ethics आया नहीं. Okay, in ethics there are terms like conscience, crisis of conscience, crisis of values, crisis of ethics, crisis of morality. तो I have already told, अगर off word है ना, तो that is a good thing. क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस मतलब उसमें कॉन्शियंस डेवलप हुआ है, उसको सही क्या गलत क्या समझ नहीं आ रहा, इन दो सही में क्या ज्यादा सही, दो गलत में क्या कम गलत. लेकिन जो दूसरे वर्ड से कॉन्शियंस क्राइसिस, मोरल क्राइसिस, वैल्यू क्राइसिस, इथिकल क्राइसिस, तो इनको बोला जाता है, ओके, दैट इन लोगों में कॉन्शियंस, वैल्यूज, इथिक्स, मोरालिटी का सेंस ही डेवलप नहीं हुआ. दे हैव द मोरल क्राइसिस, मोरालिटी डेवलप नहीं हुई. दे हैव वैल्यू क्राइसिस, वैल्यूज ही डेवलप नहीं हुए. दे हैव कॉन्शियंस क्राइसिस, उनमें विवेक बुद्धि, कॉन्शियंस ही डेवलप नहीं हुआ. और ऐसे जो लोग हैं जिनमें कोई नैतिकता आई ही नहीं, कोई सद्गुण है ही नहीं, एग्जिस्ट करते ही नहीं, सिर्फ दुर्गुणों का ही विकास हुआ है, सिर्फ दुर्गुण है, सिर्फ इमोरलिटी से भरे हैं, कूट कूट के वो कमीनापन करते हैं और कमीनापन करना ही उनको पसंद आता है. दीज आर द विशियस पीपल. दे नेवर ट्राई टू बी वर्चुअस. इनको वर्चुअस बनना पसंद ही नहीं आता. रादर गलत चीजें करके दे एंजॉय, दे गेट द प्लेजर. सो दे एंजॉय द प्लेजर बाय बैड थिंग. और इनमें कोई मोरल गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि मोरल गिल्ट होने के लिए सेंस ऑफ मोरालिटी होना चाहिए. इनमें सेंस ऑफ मोरालिटी नहीं होता तो मोरल गिल्ट कैसे होगा. एंड दे एंजॉय डूइंग इमोरल थिंग, एंजॉय डूइंग बैड थिंग. ओके, एंड सो प्लेजर बाय बैड. देन आपका इनकॉन्टिनेंट पीपल. सो इनकॉन्टिनेंट पीपल जो है, दे लैक सेल्फ रिस्ट्रेंट ड्यू टू वीकनेस ऑफ माइंड, फेस मोरल कॉन्फ्लिक्ट बट चूज वाइस. ओके, अब थोड़ा मोरालिटी में इस साइड जाते हैं तो विशियस, इधर आते हैं वर्चुअस. और वर्चुअस और दोनों के बीच में भी दो कैटेगरी है, इनकॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट पीपल. तो ये इनकॉन्टिनेंट पीपल मतलब क्या, तो ये पूरे विशियस कमीने लोग, इनमें मोरालिटी 0%. ओके,
ये जो लोग हैं वर्चुअस, इनमें मोरालिटी 100%, ओके, दे आर फुल्ली डेवलप मोरल प्रिंसिपल, लाइक देवताओं जैसे फुल्ली मोरल। इन दोनों में आते हैं इनकॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट। तो ये जो इनकॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट है, इनमें थोड़ी मोरालिटी भी है लेकिन इमोरैलिटी भी है, दोनों में स्ट्रगल है। तो ये इनकॉन्टिनेंट लोगों को ऐसे समझो कि इनमें 70% कमीनापन है लेकिन 30% मोरालिटी आ चुकी है, सद्गुण आ चुके। 70% दुर्गुण है, 30% सद्गुण है, ओके। 70% इमोरलिटी है, 30% मोरालिटी। तो मैं सिर्फ फॉर रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कोई फॉर्मूला उसने नहीं दिया था, एरिस्टोटल ने परसेंटेज नहीं दिया था। तो मतलब क्या कि इन लोगों में इमोरलिटी ज्यादा है, मोरालिटी का थोड़ा सेंस आ चुका है। और इसकी वजह से व्हाट दिस पीपल डू, दे लैक सेल्फ रिस्ट्रेंट, ओके, एंड ड्यू टू वीकनेस ऑफ माइंड दे फेस मोरल कॉन्फ्लिक्ट बट चूज वाइस। तो इन लोगों में मोरल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मोरल डायलेमा होता है, नैतिकता का सामना करना पड़ता है उनको, नैतिक अनैतिक क्या इनका। और जब उनके सामने चॉइस होती है इथिकल एंड अनइथिकल, मोरल और इमोरल के बीच में, क्योंकि उनमें थोड़ी मोरालिटी आई है जो उनको बताती है कि ये जो तू कर रहा है गलत चीज कर रहा है, ये इमोरल है, ये अनइथिकल है, लेकिन इन लोगों में इमोरलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मूवीज में आप देखते हो कि एक ब्लैक एंजल, एक व्हाइट एंजल, और आपको गाइड मिसगाइड कर रहा है एक्टर एक्ट्रेस को मूवी में, तो उसी तरह से वो जो गाइड मिसगाइड करे उसमें ब्लैक एंजल, अरे डिविल माइंड, ये ज्यादा स्ट्रांग है। और कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस का माइंड वो थोड़ा वीक है, लेकिन कॉन्शियस माइंड तो है। और इसकी वजह से बिकॉज डिविल माइंड इज स्ट्रॉन्गर, दे हैव वीक माइंड, एंड बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ माइंड दे चूज टू डू रॉन्ग थिंग, दे चूज वाइज, वो गलत करना कर देते हैं। और ये गलत चीज करने के बाद ऑब्वियसली उनकी इच्छा तो पूरी हो गई गलत करने की, उससे प्लेजर तो आता है उनको, बट जो उनमें थोड़ी बहुत मोरालिटी है, नैतिकता है, सद्गुण है, वो कंटिन्यूअसली उनके माइंड में गिल्ट पैदा करते हैं कि यार तूने जो किया वो गलत किया। तो इनकी इच्छाएं तो पूरी होती है लेकिन उनका जो खुद का कॉन्शियंस है इसमें बहुत गिल्ट होता है, ओके, गिल्ट पैदा होता है। लेकिन फिर भी कॉन्शियंस इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनसे सही चीज करवाओ, और इसलिए आउट ऑफ वीकनेस ऑफ माइंड वो गलत चीज करते हैं। तो गलत चीज करके अपनी इच्छाएं तो पूरी कर लेते हैं, सो दे हैव सैटिस्फाइड डिजायर्स, ओके, दे हैव सैटिस्फाइड डिजायर्स बट दे हैव डिससैटिस्फाइड सेल्फ, ओके। मन में उनके गिल्ट आता है, डिससैटिस्फाइड सेल्फ बट दे हैव सैटिस्फाइड डिजायर, इच्छा पूर्ति तो हो गई, ओके, लेकिन मन में उनके गिल्ट क्राइसिस पैदा होता है। कॉन्शियंस टेल्स देम कंटिन्यूअसली कि यार तूने गलत किया था, ओके, वो तूने चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इन लोगों में कोई गिल्ट नहीं होता, विशियस पीपल, दे एंजॉय डूइंग बैड। ये जो है, ओके, दे एंजॉय डूइंग बैड, दे डू बैड एंड एंजॉय डूइंग बैड। दीज पीपल डू बैड बट दे फील गिल्ट। और व्हाई दिस पीपल डू बैड? क्योंकि सेंस ऑफ मोरालिटी, कॉन्शियंस इतना स्ट्रांग डेवलप नहीं है कि वो अपने डिजायर्स को, ग्रीडी माइंड को, इविल माइंड को कंट्रोल कर पाए। कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, और ड्यू टू वीकनेस ऑफ माइंड they do bad thing but realize that they are doing bad thing, they realize they are doing unethical thing, they realize they are doing immoral thing, और इसकी वजह से उनकी इच्छाएं तो पूरी हो गई, satisfied desire, they have dissatisfied self। फिर तीसरे आते हैं गाइस continent और restrained people। अब ये continent और restrained people, they choose to be virtuous through strength of mind but have to overcome moral dilemma, okay। सो अब ये जो है कॉन्टिनेंट और रिस्ट्रेंड पीपल चूज टू बी वर्चुअस थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बट हैव टू ओवरकम मोरल डायलेमा। तो ये जो है आपके कॉन्टिनेंट पीपल, इनमें क्या इश्यू है? इनमें भी मोरालिटी इमोरलिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन इनमें मोरालिटी ज्यादा है और इमोरलिटी अब कम है। 70% सपोज कि इनमें मोरालिटी है, 30% इमोरालिटी, मतलब कॉन्शियस माइंड ज्यादा स्ट्रांग है, ओके, एंड इविल माइंड वीक है। इनकॉन्टिनेंट लोगों में, ओके, इविल माइंड ज्यादा स्ट्रांग है, कॉन्शियस का माइंड थोड़ा वीक है। लेकिन इन लोगों में कॉन्शियस माइंड ज्यादा है, स्ट्रांग है, इविल माइंड वीक है। तो ये कॉन्टिनेंट जो है लोग है वो रिस्ट्रेन्ड, दे रिस्ट्रेन देयर डिजायर्स, दे कंट्रोल देयर इविल इंपल्सेस, और ये इविल इंपल्सेस को कंट्रोल करके they do the right thing, they do the moral thing,
वो इथिकल चीज करते हैं, मोरल चीज करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उनका ज्यादा पावरफुल है, मोरल माइंड ज्यादा पावरफुल है. सो दे चूज टू बी वर्चुअस through strength of mind. Okay, so they choose to be virtuous through strength of mind, but have to overcome moral dilemma. But उनको अपना moral dilemma overcome करना पड़ता है. Okay, so they choose to be virtuous through strength of mind, but have to overcome moral dilemma. मतलब ये तो अच्छी चीज करते हैं, they choose to be virtuous, गलत चीज नहीं करते. ये विशियस लोग गलत ही चीज करते हैं और एंजॉय करते हैं. ये लोग गिल्ट पैदा होता है फिर भी गलत करते हैं. इन लोगों में कॉन्शियस माइंड ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये लोग वर्चुअस चीज करते हैं, दे एंजॉय, दे डू द गुड थिंग. बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, दे हैव टू ओवरकम मोरल डायलेमा. मतलब इन लोगों में मोरल डायलेमा पैदा होता है क्योंकि इविल माइंड थोड़ा तो बाकी है उनमें. और ये इविल माइंड बोलता है यार गलत चीज कर ले, कोई नहीं देख रहा, गलत चीज कर ले, चोरी कर ले, तू पकड़ा नहीं जाएगा. लेकिन ये अपने इविल माइंड को समझाते कि नहीं ये चीज गलत है, कोई देख भी नहीं रहा तो मैं सिग्नल फॉलो करूंगा. ओके, कोई चोरी मैं पकड़ा भी ना जाऊं लेकिन चोरी करा गलत बात है. ओके, तो ये लोग इथिकल चीज करते हैं, इमोरल मोरल चीज करते हैं, नैतिकता से दे बिहेव, लेकिन इनको मोरल डायलेमा का सामना फेस करना पड़ता है. और मोरल डायलेमा फेस करके उनका इथिकल माइंड जीत जाता है एंड दे डू द गुड थिंग. कॉन्टिनेंट पीपल. फिर इससे क्या होता है, ओके, नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड सेल्फ. इच्छा भी पूरी नहीं हुई लेकिन सेल्फ भी इनका सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इनके माइंड में वो गलत चीज करने की इच्छा तो पैदा हो रही है. भले उनका कॉन्शियस माइंड, अच्छा माइंड जो है, इथिकल माइंड ओवर पावर करता है, लेकिन जो अनइथिकल माइंड है, ओके, ये कॉजेस देम टू डू द रॉन्ग थिंग. सॉरी, ये जो अनइथिकल माइंड है पुशेस देम और क्रिएट फीलिंग्स इनसाइड देम टू डू द रॉन्ग थिंग. तो मन में गलत करने की इच्छा तो हो रही है, भले एक्शन में वो इथिकल चीज कर रहे हैं, लेकिन मन में वो निगेटिविटी है, एविल माइंड थोड़ा बहुत तो एग्जिस्ट करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका भी सेल्फ इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड. तो अभी तक हमने क्या देखा, विशियस पीपल, दे एंजॉय डूइंग बैड, दे गेट प्लेजर बाय बैड. इनमें मोरालिटी का सेंस ही नहीं, और इनकी इच्छाएं तो पूरी होगी क्योंकि गलत चीजों से उनको इच्छा पूरी करना यही सही लगता है. सो दे हैव प्लेजर बाय बैड. ये जो लोग हैं इनकॉन्टिनेंट पीपल, इनमें डिजायर्स तो होती है, ओके, और इनमें मोरालिटी भी होती है, इमोरलिटी भी होती है. इमोरलिटी ज्यादा है इसलिए वो इमोरल चीज करते हैं, और इमोरल चीज करके इच्छा पूर्ति होती है, डिजायर सेटिस्फाई होती है, लेकिन मन उनका सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि मन में वो गिल्ट है कि मैंने कुछ गलत किया. ये जो लोग होते हैं इनमें मोरालिटी ज्यादा होती है, इमोरलिटी कम, इसलिए मोरालिटी के स्ट्रेंथ से वो सही काम करते हैं, लेकिन सही काम करने से पहले उनको इमोरल माइंड से स्ट्रगल करना पड़ रहा है. और बिकॉज दे हैव टू फाइट इमोरल माइंड, फाइट मोरल डायलेमा, ओके, और वो करके मोरल माइंड जीत तो जाता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंपल्शन, वो फाइटिंग फेस करने के बाद कोई सही चीज करते हैं. तो इनमें जो इविल माइंड है, ओके, थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट है, और इसकी वजह से दे आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड. लेकिन उसके बाद आते हैं वर्चुअस पीपल. और ये जो वर्चुअस लोग हैं, वर्चुअस पीपल, इनमें देयर इज नो सेंस ऑफ इमोरलिटी. इनकी नैतिकता पूरी विकसित हो चुकी है, दे आर फुल्ली डेवलप ऑन मोरालिटी. एंड दीज पीपल एंजॉय डूइंग बैड, दे गेट प्लेजर बाय डूइंग, सॉरी, दीज पीपल एंजॉय डूइंग गुड, दे गेट प्लेजर बाय डूइंग गुड. दे आर फुल्ली डेवलप मोरल कॉन्शियंस, ओके, सत विवेक बुद्धि उनमें पूरी विकसित हो चुकी है. तो ऐसे जो लोग हैं, दे एंजॉय बीइंग वर्चुअस ड्यू टू सैटिस्फाइड रीजन. ओके, उनका जो मोरल माइंड है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, मोरल रीजनिंग फुल्ली डेवलप हो चुका है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज पीपल एंजॉय बीइंग वर्चुअस ड्यू टू सैटिस्फाइड रीजन. सो दे एंजॉय डूइंग वर्चुअस एंड दे फेस नो मोरल डिलेमा. ओके, तो इनमें कोई मोरल डिलेमा नहीं होता क्योंकि दे नो व्हाट इज गुड, दे एंजॉय डूइंग गुड. इन लोगों में मोरल डिलेमा नहीं होता, दे एंजॉय डूइंग बैड, विशियस पीपल. इनमें मोरल डिलेमा आता ही नहीं, मोरालिटी का सेंस ही नहीं है, 100% इमोरल, और इसलिए नो मोरल डिलेमा. दे आर वर्चुअस पीपल, 100% मोरल, दैट्स व्हाई नो मोरल डिलेमा. ओके, सो इनमें भी मोरल डिलेमा नहीं, एंड दे एंजॉय डूइंग बैड, 100% इमोरल, कोई मोरल डिलेमा नहीं. वर्चुअस पीपल, दे एंजॉय डूइंग गुड, 100% मोरल. और इनके इसमें
माइंड पूरा विकसित हो चुका है, मोरल रीजनिंग, इसलिए दे हैव फुल्ली सेटिस्फाइड सेल्फ। ओके, इनको फर्क नहीं पड़ता मेरी इच्छाएं पूरी होना हो, उनका मन ओके तृप्त है। दे हैव डेवलप दिस मोरल रीजनिंग। बुद्धा जैसे लोग, महावीरा जैसे लोग, दैट इज फुल्ली वर्चुअस, हुज डिजायर्स आर इन टोटल कंट्रोल। इनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, इमोरलिटी का इनमें सेंस ही नहीं है। दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ और मोरालिटी, दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ इथिक्स, फुल्ली डेवलप। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम या योग पुरुष कृष्णा जब हम बात करते हैं, ओके, दे आर फ्री फ्रॉम एनी इवन टच ऑफ इविल। ओके, दे आर प्योर। जो सच्चिदानंद जो कंसेप्ट है इंडिया में, सत, ट्रुथ, चित, आत्मा, जिसका आत्मा या चित्त हमेशा सत, ट्रुथ फोर्स से चलता है। ओके, गांधी ने भी जो बोल रहा था सत्याग्रह में, ट्रुथ फोर्स जिनके अंदर होता है, और ऐसे लोग दैट इज 100% मोरल वर्चुअस पीपल, दैट इज सेटिस्फाइड सेल्फ। ओके, तो विशियस पीपल एंजॉय डूइंग बैड, 100% immoral, so no moral dilemma. Incontinent people do bad but don't enjoy it, क्योंकि थोड़ी बहुत मोरालिटी आ चुकी है, but immoral mind is stronger. Continent people, okay, moral mind is stronger, immoral mind is weak, so they do good thing, they do good thing, but they have to overcome, okay, moral dilemma. Evil mind थोड़ा अभी भी बाकी है, और इसकी वजह से they also face moral dilemma, okay, and do good thing. And virtuous people face no moral dilemma. They know what is right, 100% morality. So no moral dilemma, enjoy doing bad. Moral dilemma, but do bad. Moral dilemma, but do good. Virtuous people, no moral dilemma, do good. Okay. So फर्क इतना ही है कि कॉन्टिनेंट और वर्चुअस में इनमें मोरल डायलेमा पैदा होता है। इविल माइंड थोड़ा बाकी है, जो बोल तो रहा है कि यार गलत कर, लेकिन अच्छा माइंड ज्यादा है। तो ये भी लोग जो है कॉन्टिनेंट 100% मोरालिटी में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत इविल माइंड अब भी बाकी है। इनमें और ज्यादा इविल माइंड है, इनमें तो पूरा ही इविल माइंड है। वर्चुअस आर द बेस्ट पीपल, व्हाट एरिस्टोटल सेड, 100%। ओके, इनमें जो है वो मोरल डायलेमा डेवलप हो चुका है। मोरल डायलेमा आता ही नहीं है, मोरालिटी डेवलप हो चुकी है। तो फिर इन लोगों के साथ करे क्या? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका कहना क्या है, क्या किया जाए। तो सिर्फ एक लाइन में बिफोर कंक्लूडिंग, और मेरे ऐप क्लासेस में आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, लेकिन एक लाइन में टू कंक्लूड इट, विशियस पीपल तो डंडे मारो, पुट देम इन जेल। इनके लिए डर होना चाहिए लॉज का, सिस्टम का, एस्टेब्लिशमेंट का, पुलिस का, और इनको डंडे मार मार के जेल में डालो। दीज आर द एक्सट्रीमली रेडिकलाइज्ड या क्रिमिनल माइंडेड पीपल। इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, इनको सिर्फ गोली मारो, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। ओके, पुट देम इन जेल फॉर लाइफ टाइम। ये कसाब जैसे लोग सुधार नहीं सकते, फिनिश देम ऑफ। ओके, ये जो है निर्भया को जैसे टॉर्चर किया, ये जो लोग है एक्सट्रीम इमोरलिटी। आप रेप करते उसको, रेप करके उसको छोड़ देते, मर्डर भी करके छोड़ देते, और जिस लेवल पे सिर्फ उसको टॉर्चर करना, वजाइना में रॉड इंसर्ट करना, ओके, इस तरह से कि डीएनए एविडेंस ना बचे और मुंह पकड़ा ना जाओ, जिस लेवल पे ब्रुटैलिटी की गई, ओके, एक्सट्रीम विशियस माइंड, एंड दे वर एंजॉयिंग दैट। ऐसे लोगों को सिर्फ गोली मार सकते हैं या फांसी दे दो, जो गवर्नमेंट ने किया, कोर्ट ने किया। सो ये जो है विशियस पीपल के साथ, दिस इज हाउ यू नीड टू डील विथ। फिर आता है आपके इनकॉन्टिनेंट पीपल एंड कॉन्टिनेंट। इनको डंडे का डर बना बना के पुश देम टू डू द गुड थिंग। हैबिचुएट करो अच्छी चीज करने के लिए, एजुकेट करो अच्छी चीज करने के लिए। सो एजुकेशन से, हैबिचुएशन से इनमें कैरेक्टर वर्च्यू डेवलप करो, स्ट्रेंथन करो, और इनको मूव करो वर्चुअस की तरफ जाने के लिए, और ये विशियस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। ये एक मेजर काम करना है। और जो वर्चुअस पीपल है इनके साथ क्या करें, तो ऑटोमेटिकली दे आर वर्चुअस, देन रिवॉर्ड देम। विशियस को पनिश करो, वर्चुअस को रिवॉर्ड करो। एंड हाउ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जो भी कंसेप्ट इथिक्स में आते हैं ना, उसको आपको सोचना है कि मैं आईएएस हूं तो ये मुझे कैसे काम आएगा, कल आईपीएस हूं तो कैसे काम आएगा। हर कंसेप्ट को एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक करो। ये मैं अपने ऐप क्लासेस में बहुत एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो विशियस पीपल को रिवॉर्ड करो मतलब क्या, मेक देम आईएएस, आईपीएस, ओके, मेक देम जजेस, मेक देम टीचर्स, प्रोफेसर्स। So with their virtuous morality, they can improve the morality of the society. They can teach society. They will be able to create good laws, good policies, good regulations. They will be good leaders. They will be good teachers, and they will teach and create overall good society. Okay? और इसलिए
इनको गुरु बनाओ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बनाओ जो आगे आपको आके मोरालिटी पढ़ा पाएंगे। इनको लॉज में इंप्लीमेंट करो, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपसे मोरालिटी पे काम करवा लेंगे, मोरल बिहेवियर इंश्योर करेंगे। इनको नेता बनाओ, पॉलिटिशियंस, वो मोरल लॉज बना के सोसाइटी को और सुधारेंगे। सो दैट्स हाउ ही क्लासिफाइड पीपल इन ऑन मोरालिटी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, okay, and stay tuned to my YouTube channel Darshanik IAS. Like and subscribe this video, share with your friends and help me grow. And also to download these notes, you can join me on UPSC Ethics 4 Telegram channel and download my app from App Store, Darshanik IAS by Kadam Sir on Google Play App Store. In soon, around December, Jan, by the end of December, beginning of Jan month, I will be launching my full ethics and essay courses there. So do take help of that, and that will be one-stop solution. Other than my classes of essay and ethics and my notes that I provide, you don't have to do or refer anything else. All you have to do after that is kitna writing practice karo aap, okay, and that will be the only game that you need to focus on. Otherwise, content and teaching ka part, you don't have to worry at all. So thanks for listening, guys. Stay tuned to more lectures.